हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें बताने जा रहे हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों, स्पीड आपने 9th क्लास में भी पढ़ते हो। आप 9th क्लास में जो है थोड़ा सा डिटेल कम है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्पीड भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ेंगे और कुछ जो है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या है? नॉर्मली स्पीड हम पढ़ते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ स्पीड। ये आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं और हम पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a body with time in any direction is called its speed. The rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed. It is represented by v. Then again सुनिए आप, the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed. Speed is represented by v. It is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because it has no direction, therefore it is a scalar quantity. Speed is equal to distance upon time. It is represented by v. Its SI unit is meter per second and other units are centimeter per second or kilometer per hour or kilometer per minute or kilometer per second, but its SI unit is meter per second. Now, how many types of speed? There are 4 types of speed: uniform speed, variable speed, average speed, instantaneous speed. There are 4 types of speed: uniform speed, variable speed, average speed and instantaneous speed. Then what is uniform speed? जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है आपने। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन दिस इज डेफिनेशन इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. Uniform speed is defined as a speed when a body covers equal distance in equal intervals of time. Next है variable speed. Variable speed क्या होती है? Variable means vary करती है, जो speed constant नहीं होती है. Non uniform speed is known as a variable speed. चाहे इसको आप non uniform speed बोलिए, चाहे इसको आप variable speed बोलिए. तो if a body covers equal distance in unequal time. Variable speed क्या है? If a body covers equal distance in unequal interval of time, or we can say that if a body covers unequal distance in equal interval of time, then this speed is known as a variable speed. This speed is not constant, means its value, its numeric value is changes with respect to time. Sometimes it will be 10 kilometer per second, then next time is 12 meter per second or 5 meter per second or 2 meter per second or 0. Then the speed which vary with respect to time, which is not covered equal distance in equal time, is known as a variable speed. Now the third one is average speed. What is average speed? Then average speed बच्चों जो है, average speed is defined as the total distance per unit total time is defined as a average speed for an object moving with variable speed. तो कब निकलेगी average speed? जब object जो होगा वो variable speed में होगा. तो when an object moving with variable speed, then the average speed is the total distance traveled by the body divided by the total time taken to cover the distance is defined as a average speed. Then for variable speed, if a body covers variable speed, if body moves in variable speed, then the ratio of total distance covered by the body to the total time taken by the body is defined as average speed. Next one is instantaneous speed. What is instantaneous speed? The speed of an object at any particular instant of time. The speed of an object at any particular
instant of time is defined as the instantaneous speed. Instantaneous means speed at any instant, speed at any moment is known as instantaneous speed. और जब हम मोमेंट की बात करते हैं, जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं, तो वहां पे जो टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट फ्यू सेकेंड, जस्ट फ्यू सेकेंड्स की स्पीड जो हम मेजर करते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. और टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट्स यूज करते हैं. लिमिट का मतलब होता है किस में लिमिट लगा रहे हैं आप, तो इसको रिप्रेजेंट हम सारी स्पीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे v से ही. वो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे वेरिएबल स्पीड हो, चाहे एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, सभी को v से रिप्रेजेंट करते हैं. और v को जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं तो v इज इक्वल टू लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा t टर्न्स टू 0. बच्चों देखो डेल्टा t के बाद एरो लगा होगा, वो डेल्टा t इसको पढ़ते हो, डेल्टा t टर्न्स टू 0. इसका मतलब है कि डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉट इक्वल टू 0 बट इज वेरी क्लोज टू द 0. और इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखते हैं. डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा x है तो चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा t है तो चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल देन स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसको हम और रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt. तो v इज इक्वल टू dx बाई dt. ये जो है इसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ द डिस्टेंस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बच्चों इस पे आगे हम एक मैथ्स में कैलकुलस में पढ़ते हैं और इसको हमें फिजिक्स में बहुत यूज करना है. तो v इज इक्वल टू dx बाई dt. ये कब हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड. जितने भी व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें बच्चों स्पीडोमीटर लगा होता है. और स्पीडोमीटर का जो काम होता है वो क्या काम होता है, टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये हमको वैल्यू देता है उस पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट की जो हमारी व्हीकल्स की स्पीड होती है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर विच आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स. ये था हमारे पास स्पीड, है ना. अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी. What is velocity? The rate of change of position of an object with time in given direction is called velocity. The rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity. फिर से ध्यान से सुनिए क्या अंतर रहा स्पीड और उसमें वेलोसिटी में. स्पीड में जब हम पढ़ते थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज स्पीड, और इन एनी गिवन डायरेक्शन जो है वो हो गई उसकी वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Velocity is defined as a displacement upon time. It is also represented by v. Its SI unit is meter per second. V is equal to displacement upon time. Its SI unit is meter per second. तो bachcho kya hua, the rate of change of position of an object with time in given direction is called a velocity. In any direction is called speed. दोनों की जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं. दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा अंतर है. स्पीड में हम डिस्टेंस यूज करते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बच्चों पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में क्या हो गई, पहला क्या हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हुआ, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Uniform velocity, if a body covers equal displacement in equal interval of time, however small these time intervals may be. वो जो टाइम इंटरवल्स हैं वो कितने भी छोटे हों, कितने भी कम हों, लेकिन अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में कवर कर रही है देन वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेम डेफिनेशन यहाँ थी बट क्या था यहाँ पे, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और यहाँ पे हम क्या पढ़ना है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
नेक्स्ट वेरिएबल वेलोसिटी। तो इफ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाए। इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। वेलोसिटी बच्चों क्या है, वेलोसिटी में जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। तो अगर इसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों में चेंजेस हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ये भी हम कब निकालेंगे, जब हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी। If a body is moving with variable velocity, then the ratio of total displacement to the total time is defined as average velocity. Next है instantaneous velocity. Instantaneous जैसे speed था, speed of an object at any particular instant of time. Similarly, the velocity of a body at any instant is defined as the instantaneous velocity. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टर्न्स टू 0। टर्न्स मतलब यहाँ पे ये एरो बनता है, ये इक्वल टू नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। ये टर्न्स में क्या है, ऐसे एरो बना हुआ है। टर्न्स टू का मतलब होता है डेल्टा t इज वेरी क्लोज टू 0। डेल्टा t इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा x बाई डेल्टा t, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा x चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम। स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टर्न्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाइल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में डिफरेंस यही है कि वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्पीड में जो है वो हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और सिमिलरिटीज क्या है, दोनों की सिंबल सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों के टाइप्स भी सेम हैं। जो 4 टाइप्स स्पीड के हैं वही 4 टाइप्स वेलोसिटी के भी हैं। तो कहाँ अंतर हुआ कि इसमें डिस्टेंस होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। थैंक यू बच्चों।